ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں بولیے۔ ہاں شیخ میں آپ کو فون کروں؟ ہاں کوئی دقت نہیں چلیے کوئی دقت نہیں، بات کیجیے۔ جی شیخ، اصل میں آپ سے تھوڑی مطلب امپورٹنٹ بات کرنی تھی میرے کو۔ ہاں بولیے۔ یہ جو سفیان ثوری ہیں، ان کی جو ان والی جو ہوتی ہے روایت، کیا وہ ضعیف ہوتی ہے؟ نہیں ضعیف نہیں ہوتی ہے، ان کا آنا قبول ہوتا ہے۔ اچھا، اصل میں یہ جو علی مرزا نہیں ہے، اس نے ایک اپنے وہ بیان میں کہا تھا کہ مطلب جو یہ مسلم شریف کا یہ اصول ہے پیٹ کہ اگر کوئی مطلب ان والی ہوتی ہے مدلس کی حدیث تو وہ ایک دم پکی ضعیف ہوتی ہے۔ مدلس کی کئی کیٹیگری ہوتی ہے جی ہاں، مدلس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جی، تو ہر مدلس کے ان کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ ان کا اننا جو ہے قبول نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ضعیف ہوتا نا راوی کی غلطی، جی تو راوی بہت سارے غلطی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہر غلطی کرنے والے راوی کی روایت رد ہو جائے گی۔ اچھا، جو بہت زیادہ غلطی کرتا ہے تو اس سے یہ لیول لگ جاتا ہے ضعیف کا، کثیر الخطا کا۔ کثیر الخطا یعنی بہت غلطی کرتا ہے۔ جو راوی بہت زیادہ غلطی کرتا ہے تو اس کی روایت کو رد کر دیا ہے، لیکن جس نے کبھی کبھار غلطی کیا ایسا دکھا تو اس کو کہتے ہیں ربما اخطا، کبھی کبھی غلطی کیا، لیکن اس کو ثقہ ہی بولتے ہیں اور اس کو صدوق ہی بولتے ہیں۔ تو جہاں پتہ چل جائے کہ اس نے غلطی کیا ہے وہاں اس کی روایت نہیں لیتے ہیں، لیکن عام حالات میں جہاں یہ پتہ نہ چلے کہ غلطی کیا ہے تو عام حالات میں اس کی روایت لیتے ہیں۔ تو جیسے راویوں کے حفظ کے بارے میں نا، جو میموری پاور ہے راوی کا، تو اگر کوئی بہت زیادہ اس سے غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کی ساری روایتوں کو کہتے نہیں لیں گے۔ اچھا، وہ راوی آ گیا تو اس کی روایت کو دیکھ دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار غلطی کا انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو اس کبھی کبھار غلطی کی وجہ سے ہم اس کی روایات کو رد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہر راوی سے کہیں نہ کہیں چوک ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا چلیے، ایسے تدلیس کا مسئلہ ہے، تو اگر کوئی بہت زیادہ تدلیس کرتا ہو تو اس کا جو عن ہوتا ہے وہ ہم نہیں لیتے ہیں جب تک کوئی سپورٹ نہ ملے۔ اچھا، لیکن اگر کسی نے ایک دو بار تدلیس کر دیا، ایک دو بار، تو اب جہاں ثابت ہو جائے کہ ہاں یہاں تدلیس کیا ہے وہاں اس کی روایت کو نہیں لیں گے، لیکن جہاں ثابت نہ ہو جس نے تدلیس کیا ہے صرف ان بولا ہے تو ہم اس کی روایت کو رد نہیں کرتے، کیونکہ ان بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تدلیس کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں احتمال ہوتا ہے، مطلب احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں تدلیس کیا ہو، احتمال ہے بس، ضروری نہیں ہے کہ تدلیس کیا ہو۔ اچھا، اس میں کوئی علماء میں جو اپنے علماء ہیں ان میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ پوری وضاحت سن لیجیے۔ جی، یہ جو راوی ہوتا ہے نا مدلس کبھی کبھی تدلیس کرنے والا، تو جو ان بولتا ہے تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تدلیس ہی کر رہا ہے۔ مدلس بولے ان تو ایسا نہیں تدلیس ہی کر رہا ہو، جیسے کوئی غلطی کرنے معمولی کہیں کی غلطی کی کس راوی میں، تو اب کوئی بھی روایت بیان کرتے نہیں کہیں گے یہاں غلطی بول رہا ہے۔ ہاں بھائی، جس نے کبھی کبھی غلطی کی ہے تو اور بہت ساری باتیں میں صحیح بول رہا نا، تو جس نے کبھی کبھی تدلیس کیا ہے تو ایسا مطلب تھوڑی کہ ہر جگہ تدلیس ہی کر رہا ہے وہ۔ ہاں، تو جو غالب حالت ہوتی ہے راوی کی اس کا اعتبار ہوتا ہے، چاہے حفظ میں چاہے تدلیس میں۔ حافظے میں اکثر وہ صحیح بولتا ہے تو اس اکثر کا اعتبار کر کے روایتوں کو لیتے ہیں جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ جہاں پہ اس نے خاص غلطی کی۔ ایسے تدلیس میں غالب حالت راوی کی ہے کہ تدلیس نہیں کرتا ہے تو اس کی روایت لیتے ہیں، اللہ یہ کہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہاں پہ تدلیس کیا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، مدلسین کے درجات ہوتے ہیں، راوی کے حفظ کے درجات ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کا اننا قبول ہوتا ہے۔ ہاں، کہیں اگر ثبوت مل جائے کہ یہاں انہوں نے تدلیس کیا تو ٹھیک ہے، عورت کر دیں گے، جہاں ثبوت نہیں ملتا تو کیونکہ ان کی غالب حالت یہ ہے کہ تدلیس نہیں کرتے ہیں، اس سے اکثر جو حالت ہے اس کا اعتبار کرتے ان کا اننا قبول ہوگا۔ جی ماشاء اللہ۔ مطلب اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا اپنے علماء میں؟ نہیں، اپنے علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ بہت سارے لوگوں کی جو متاثرین کی بات پڑھیں گے تو جیسے بعض حنفی علماء ہیں وہ کہیں کہتے ہیں سفیان ثوری نے ان کی روایت کیا، ان کی روایت ضعیف ہوگی، کہیں وہ بول دیں گے۔ تو کوئی اختلاف ہے، بعض کے علماء میں کچھ اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ہم کی روایت لیں گے ان کی، کوئی کہتا نہیں ان کی ضعیف کر دیں گے۔ لیکن عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں نا کہ سفیان ثوری کا ان آئی روایت ضعیف، وہ بھی خود دوسری جگہ ان کی روایت لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حنفی لوگ ہیں احناف، جو سینے پہ ہاتھ مارنے والی روایت آئی کہ سفیان ثوری ان ہے ضعیف ہے،
लेकिन एक अफलुद्दीन वाली रवायत आएगी तो वहाँ पे अनने पे कोई जरा नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं चलेगा उस का नाम मकबूल। हाँ, वो तो अपने फायदे का देखते हैं कि कहाँ पे उनको तो फायदा हो रहा है। इसमें कुछ लोग हैं जो मतलब कहीं रद्द करते कहीं नहीं, लेकिन उसूल क्या होना चाहिए? उसूल हमारा उसूल क्या है भाई, ये कि सुफियान सौरी का आनाना ये मकबूल है, कबूल है, इल्ला एक चीज साबित हो जाए कि तब्दील किया है। तो अगर कोई सबूत दे दे कि हाँ यहाँ इन्होंने ड्रॉप किया किसी रावी को, उसका कोई सबूत मिल जाए तो हम इसको मान लेंगे कि हाँ यहाँ पे रवायत नहीं। जैसे हम खलील खता रावी के बारे में उसकी रवायत हम लेते हैं, लेकिन अगर कोई कहीं प्रूफ कर दे कि यहाँ इसने गलती किया है, रवायत को देकर प्रूफ को देकर ये साबित कर दे यहाँ पे गलती किया है, तो हम उसकी रवायत नहीं लेंगे। गलती हो सकता है क्योंकि गलती साबित होगी। तो ऐसे गलती करीमों तब्दील से कम तब्दील करने वाला अगर साबित हो गए तब्दील से तो नहीं लेंगे। तो ऐसे कुछ जगहों पे ऐसे अखबार मिल जाएंगे जिन्होंने जो है रद्द किया है सुफियान सौरी का आनाना कहीं पे, तो वहाँ पे उन्होंने अगर साबित कर दिया कि भाई तब्दील किया है तो वो हमारे खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जो है वो चीज है वो हमारे उसूल के खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ साबित नहीं है तब्दील में आनाना लेंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे मुहद्दिस का कोई फल पेश करे तो उन्होंने सुफियान सौरी के आनाने को रद्द किया और साबित किया कि उन्होंने तब्दील किया है तो हमारे खिलाफ नहीं है। हाँ? तो अनाना वो असल में अनाना को रद्द नहीं कर रहे हैं, तब्दील को रद्द कर रहे हैं। हाँ? असल में वो आनंद को रद्द नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में क्या मतलब कोई वो है, अंतर है, फर्क है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, थोड़ा सा मतलब अगर इसको बता देंगे, वाज़ेह कर देंगे। तदलीस की वजह से किसी की रवायत को रद्द करना और अनने की वजह से किसी रवायत को रद्द करने में जमीन को पीछे से बच्चों की आवाज आ रही है, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। ये लॉकडाउन चल रहा है। अरे हाँ, वो तो मैं समझ गया। नहीं, अल्लाह ताला नहीं हटा सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और असल में मैं बात भी नहीं करता इस माहौल में। नहीं, अरे नहीं, ठीक है, आपने बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मैसेज किया तो मैं आपको कॉल किया बार बार। अरे नहीं, शेख अल्लाह आपको अच्छा रखे। ठीक है, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी नहीं है कि गुफ्तगू किया जाए लंबी। हम मुंबई में जो हालात से गुजर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। जी जी तो ये ऐसा मौका नहीं है कि बहुत ज्यादा बात की जाए, लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया, मैसेज भेजा। नहीं, शेख अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपने हमारी बात को रखा। सलमान भाई अगर कुछ पूछना चाहता है, सीखना चाहता है तो मैं थोड़ा वक्त निकाल के बताता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मसला है कि अनना में और तबलीग में बहुत फर्क होता है। हाँ, वही फर्क थोड़ा बता दीजिए। फर्क ये है कि भाई तबलीग किसी ने किया तो वहाँ साबित होगा ना कि यहाँ इस रावी को गिरा दिया है, इस रावी को ड्रॉप कर दिया, सबूत मिल गया कि तदलीग किया है, साबित हो गया तदलीग किया है, यहाँ पे एक रावी का उसको गिरा दिया है। हाँ, और अनना में यानी एक ऐसी रवायत जिससे मुदल्लिस अन से रवायत कर रहा है, लेकिन सिर्फ अन बोला है। वो अन इसका मतलब नहीं कि उसने बाकी किसी को गिराया है, ड्रॉप किया किसी को। तो अगर एक ऐसी रवायत है जिसमें ये साबित हो जाए कि यहाँ मुदल्लिस के बाद इसका जो उस्ताद था ज़ईफ था उसको गिरा दिया है, तो अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक ज़ईफ रावी को चैन से ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। ये समझ रहे ना कितनी बड़ी बात होगी। जी जी, बिल्कुल गौर से समझ। सनद से ज़ईफ रावी को गिरा दिया, ये प्रूफ मिल गया कि गिरा दिया है। तो यहाँ एक जो कमजोरी वो पकड़ में आ गई ना। लेकिन एक दूसरी रवायत है जिसमें एक मुदल्लिस है वो सिर्फ अन बोल रहा है कि फलां से नकल है, लेकिन ये सबूत नहीं कि वहाँ किसी को गिरा रहा है। तो दोनों में कितना फर्क है भाई। अच्छा, तो ये अली मिर्जा जो मतलब बार बार अपने बयान में कहता है कि ये मुस्लिम का ये उसूल है, पेट उसूल है कि अगर मतलब वो अन वाली कोई हदीस है तो वो पक्की ज़ईफ है, तो वो कौन सी बात है? मतलब इमाम मुस्लिम का ऐसा कोई उसूल नहीं है, कहाँ उसने कहा ऐसा? सही इमाम मुस्लिम में जो उसूल इमाम मुस्लिम जो उसूल बयान करेंगे तो मुकदमा सही मुस्लिम में ना। जी जी जी, मुकदमा सही मुस्लिम में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है जैसा वो कह रहा है। मैंने उसकी क्लिप नहीं सुना क्या बोला उसने, लेकिन मुकदमा सही मुस्लिम हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। कोई बात नहीं है, मुकदमा सही मुस्लिम में ऐसी कोई बात नहीं है। वही हमने एक बार कंफर्म कर लें ताकि उसका रद्द करने में आसानी रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं मुस्लिम 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई कहता है वो मुझे कोट करके बताए, वो अल्फाज, वो इबारत, वो जुमले कोट करके बताए, हम फिर से देखते हैं कहाँ वो समझ रहा भाई। हमने तो पूरा वो लेक्चर है ना इसके ऊपर। नहीं, मुस्लिम हमने पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, और वैसे भी कितनी बार हमने पढ़ा है। हमें तो ऐसी कोई बात नहीं मिली मुकदमा सही मुस्लिम में कि इमाम मुस्लिम ने कहा हो कि जो भी कोई भी रावी है अगर आंसर रवायत करता है तो उसको जो है रवायत पर रद्द कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कहा। बल्कि मुझे जो याद पड़ता है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने तो ये कहा है कि जिस पर तदलीस गालिब हो, यानी बहुत ज्यादा जो तदलीस करता है वो अगर हमसे रवायत करेगा तो उसकी रवायत ले लेगी। वो तो जो मैं आपको बताया हूँ वो कह रहे हैं इमाम मुस्लिम मुकदमा से। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं अली मिर्जा के हवाले से, पता नहीं कहाँ से बोल रहा है। नहीं, अली मिर्जा ने कहा कि मैंने अपने उस्ताद जो उनके थे, मतलब वो बताता है जो पाकिस्तान के थे शेख, उनका नाम लिया और उसके बाद बताया कि ये उसूल है। ठीक
ठीक है बताया, ठीक है उसने कहा, लेकिन वो हमें बताया ना कहाँ पे, हमें तो नहीं मिला ना। अब उसने कहाँ से ले लिया वो जाने, लेकिन हमें तो नहीं मिला। हमारे सामने वो अल्फाज लाए, वो इबारत लाए कि भाई इसमें वो चीज है जो कह रहा है वो। लेकिन मुकदमा सही मुस्लिम हमने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। नहीं ठीक है, हम समझ गए सारी बात अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी बात का तोड़ क्या होगा भाई, वो अल्फाज मेरे सामने कोई खोल के रख दे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि नहीं भाई ये देखो इमाम मुस्लिम ने ये बात कही है जो भी। हाँ भाई, जिसका दावा है उसको साबित करना पड़ेगा, एकदम सही बात है, दलील देना पड़ेगा। उसको वो दलील दे तो हम उससे फिर से गौर करते हैं। अब वो हमारे आलिमों का नाम लेके और उनको अपना मतलब बता देता है कि मैं उनका शागिर्द हूँ, तो इस तरीके से जो अपनी आवाम है ना, थोड़ा उनको मतलब वो अपने अंडर में ले रहा है। अरे वो तो हर फिरके के आवाम को, उसकी चालाकी क्या है अली मिर्जा की, वो हर फिरके के कुछ मसले लेकर और उसके आवाम को भड़काता है ताकि ये सारे फिरके के लोग मेरे साथ हो जाएं, अहले हदीस भी साथ हो जाएं, बरेली भी साथ हो जाएं। यही बहुत टेक्निक, मतलब सारे लोगों की बातें बताता है, फिर उसके ऊपर अपनी बात थोप देता है। नहीं, दो तरह वार करता है वो हर फिरके की तारीफ भी करता है, हर फिरके का रद्द भी करता है। तो तारीफ करके ना उसकी तारीफ करके लेता है। जैसे अहले हदीस की बहुत तारीफ करेगा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, हक कबूल करते हैं, ये तकलीफ नहीं करते हैं, ये तारीफ करके अहले हदीस को बदनाम कर देगा। और उसके बाद फिर भड़कना शुरू कर देगा कि इन लोगों ने ये किया है, वो किया, ये किया। तो अहले हदीस के लड़कों को हाईजेक कर लिया तारीफ करके, और बुराई करके अहले हदीस से रिश्ता काट लिया। ये क्या था कि कुर्बानी जो है वो 4 दिन वाली, तो उसने तो मतलब साफ बोल दिया कि ये पक्की ज़ईफ है, ये अहले हदीस पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, और बोलते हैं कि मतलब ये सुन्नत है, मुर्दा सुन्नत, और उसको मतलब वो हम जिंदा कर रहे हैं, और 4 दिन कुर्बानी वाली जो भी हदीस से मुस्नद अहमद की वो पक्की ज़ईफ है, मतलब खुलेआम बोल दिया उसने। और उसका किसी ने आज तक मतलब आंसर भी नहीं दिया। शेख अलबानी का नाम लेता है, कहता है कि मुहद्दिस सऊदी अरब, हालांकि सऊदी अरब के नहीं थे, शाम के थे। तो बोलता है शेख अलबानी का नाम लेके, वो इसको भी नहीं पता, वो कहता ना इंटरनेशनल बहुत बात करता है। हाँ, इंटरनेशनल उसको ये भी नहीं पता कि कहाँ के मुहद्दिस है अल्लामा अलबानी। कई चीजें मैं बोला ना सऊदी अरब के मुहद्दिस है अल्लामा अलबानी। शेख अलबानी सऊदी अरब के थे, अरब के फेमस मुहद्दिस है। हाँ वो तो शाम के थे ना। जी शाम के मुहद्दिस से शाम का था उनको। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने भी तो 4 दिन वाली हदीस को सही कहा, 4 दिन कुर्बानी वाली हदीस को। अच्छा यहाँ क्यों इतना चीखो पुकार करता है, इतना डायलॉग बाजी करता है कि हदीस सही है, पक्की सही है।